हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली रिसर्च की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया और बताया कि वो कौन कौन से टॉप 5 सुपर एक्टिव सांसद हैं जिन्होंने सदन के पटल पर मुखरता से अपनी बात को रखा। अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से 5 सुपर एक्टिव सांसद हैं जो इनके बाद आते हैं और जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया और पार्लियामेंट्री बिजनेस के टॉप 10 सुपर एक्टिव सांसद के रिपोर्ट में अपना स्थान सुनिश्चित किया। रिसर्च टीम ने और आगे रिसर्च की और छठा नंबर दिया एनके प्रेमचंद्र को। एनके प्रेमचंद्र ने कुल 8 मुद्दों पर सदन के चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। चर्चा में ये मनीष तिवारी के नंबर पर ही खड़े हैं। मनीष तिवारी ने भी सदन में 8 मुद्दों पर ही अपनी बात रखी थी, पर क्योंकि नंबर में हम बांट रहे हैं इसलिए एनके प्रेमचंद्र को हमने छठा नंबर दिया। Your point, yes, sir. That is when we are having a PMNRF, when we are having an auditable, accountable fund which is transparent. Sir, please. It is transparent. It is accountable. When such a fund is there, what is the need of a special fund in the name of PM case? That is the question which we are. Sir, coming to sir. Please conclude. Please conclude. Please, sir. Enough you have spoken. Please. Sir, coming to the section 8 of the ordinance. Okay. Sir, section 8 of the ordinance, it is as section 7 of the bill. Sir, amendment to the Central Goods Service and Tax, a new section is incorporated as section 168A of the CGST Act of 2017, by which the time limit prescribed in the Act can be extended on the recommendations of the GST Council in respect of actions which cannot be completed or complied with the due to the force majeure. Sir, yesterday also we have explained it. Clause 2, my objection is clause 2. Clause 2 of section... Now please conclude. Sir, please, I will, sir, as per section 170, as per rule 178, Just sir, as per rule 178, the mover of the resolution and as far as the statutory resolutions, it shall not exceed 15 minutes. Yes, with the permission of the chair. Let me conclude, please. Sir, clause 2 of section 168A provides retrospective effect to the notification. That is my objection. That 12 means... minutes already. Sir, please. Sir, the government can evade from its obligation to pay the GST compensation, which is long due. In Kerala state alone, 7,000 crores of rupees is due as GST compensation. Suppose this retrospective effect is being applicable, then definitely the government of India, yes, with the approval of the GST Council, I do agree with the minister. But even then, there is a provision. It is not there in the GST constitution. It is not there in the CGST bill. But a new provision is incorporated, thereby GST compensation can be taken away with the permission of the GST Council with a retrospective effect, for which also I strong objection. Hence, I oppose the bill, but regarding and also move the statutory resolution. Thank you very much. वहीं रिसर्च टीम ने 7वां नंबर दिया कल्याण बनर्जी को, जिन्होंने 7 मुद्दों पर सांसद के पटल पर अपनी बात रखी। By my 2 letters, one is letter dated 27th March 2020 and one letter dated 6th April 2020. In both the 2 letters, I sanctioned 1 crore rupees from MP Development Fund for medical testing, screening and other facilities required to detect and contain COVID-19. But sir, this is the amount was allocated for 2019-20. Second installment, monies had been sanctioned. Sir, district magistrate have sent the recommendation, but unfortunately till this day, sir, this 1 crore rupees have not yet been sent by the central government. COVID-19 6 months have gone. For asking for development fund, it has not been gone, sir. This is number 1. And number 2, sir, I wish to tell you, sir, I was to point out that you take our 100% salary, I will not mind. I will not mind, and I think no members will mind. But give the MP lads fund full so that we can work
for the benefits Please, of the Sukhbir poor Singh people, Badal ji. for the construction of the country. Sir, one thing, that earlier, sir, yesterday, the Honorable Defence Minister is here. He assured Sir. us. पार्लियामेंट्री बिजनेस की रिसर्च टीम ने जब रिसर्च किया तो रितेश पांडे, जो कि युवा सांसद हैं, वो भी टॉप 10 सुपर एक्टिव सांसदों में नजर आते हैं। रितेश पांडे ने कुल 6 मुद्दों पर अपनी बात रखी और 6 बिलों पर चर्चा करते नजर आए। इसलिए पार्लियामेंट्री बिजनेस की रिसर्च टीम ने उनको दिया 8वां स्थान। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल का बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और हमारा मानना है कि देश के इस आपातकालीन समय में जो भी मदद सांसदों की तरफ से हो सकती है वो पूरी तरह से उचित है। लेकिन जैसा कि इस सदन का एक मत है हमारे एमपी लैड फंड्स को लेकर के, इस पर मेरे मात्र 2 सवाल हैं। आदरणीय महोदय, मुझे सत्ता शासन से ये ज़रूर पूछने का हक है और सभी सांसदों को पूछेगा कि ठीक है, यदि आपने एमपी लैड्स को ख़त्म किया है तो मान लीजिए एक बार के लिए उसे सही मान भी लिया जाए, लेकिन वो पैसा जो 5 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्रीय विकास निधि के लिए आता है, क्या वो हमारे क्षेत्र में खर्च हो रहा है? क्या ये 5 करोड़ रुपए में जो भी हमारी सुविधाएं होती थी, चाहे वो अस्पताल की या वेंटिलेटर की, क्या उसके ऊपर कहीं पे भी ये पैसा खर्च हो रहा है? एक। दूसरा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, तमाम जगहों पे हमने देखा कि सरकार को फायदे भी हो रहे हैं। आप पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें, मैं बस खत्म कर रहा हूं, पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट आती गई, लेकिन इस देश में इस गिरावट का फायदा हमारे किसानों को, गरीबों को बिल्कुल नहीं दिया गया। बस खत्म ही कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इन सब जगहों से जो ये छूट मिल रही है, कम से कम ये तो क्षेत्र तक जाए, और जो सांसदीय विकास निधि होती है माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे जो है गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। हम लोग ये पूरी तरह से इसको हर एक क्षेत्र में देने का काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पुनः जो है इसके ऊपर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट्री बिजनेस की रिसर्च टीम ने 9वें नंबर पर रखा भर्तृहरि मेहताब को। भर्तृहरि मेहताब ने कुल 5 मुद्दों और 5 बिलों पर सदन में अपनी बात रखी। आईन प्रणीत हला 2011 मसीह कार्यकारी हला एवं 2016 रे एवं 2018 रे 2टी संशोधन आसिला। एथर आसुची 3य संशोधन जहा आउरी आगुकू निश्चित भाव में बेस भल भाव में कार्यकारी हब। गोटे समय थिला देश स्वाधीन हला परे अनेक लोक ए देश रे कहउथले बा किछि लोक ए देश रे कहउथले ए आजादी झूठी है। सेमाने सशस्त्र संग्राम करिबा पई आगभर मध्य हेइथिले एवं विदेश रु मध्य अर्थ पाउथले। परवर्ती अवस्था रे एभली किछि लोक जुटिले जो माने विदेश रु अर्थ आनी एठी धर्मांतरकरण करिबा पई मध्य उद्यम कले। 1959 मसीह रे ओडिसा रे प्रथमे धर्मांतरीकरण निरोध बिल बा आईन प्रणीत हला। परवर्ती अवस्था रे मध्य प्रदेश रे छत्तीसगढ़ को मिसई आज जो मध्य प्रदेश अच्छी से मध्य प्रदेश रे मध्य समान धरणर आईन प्रणीत हला। एबे बहु राज्य रे से प्रकार आईन प्रणीत होईची, कारण से समय रे तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्रालय भल भाव में जानिचंती, खबर पाई रखिचंती जे अर्थ विदेश रु आसी धर्मांतरीकरण होउची। 10वें पायदान पर आए निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने भी 5 मुद्दों और बिलों पर अपनी बात रखी। मैं जिस इलाके और जिस राज्य से आता हूं सर, उस इलाके में आज के समय पूरे झारखंड राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 55,000 कुल क्राइम हुए थे। अभी कोविड के बाद जबकि पूरे देश में जो है ख़त्म हो गया, अपराध जो है कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ 75,000 से ज़्यादा जो है अपराध अभी तक में रजिस्टर हो गए हैं सर। और इतना ही नहीं, 1855 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले, 1857 के पहले 1855 में जो सिद्धू कान्हू जी ने जिन्होंने की बिगुल बजाया था स्वतंत्रता का, उनके वंशज तक की हत्या हो चुकी है सर। और हमारा राज्य तिरुपति से पशुपति एक तरफ चीन के PLA से ग्रसित है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ISI एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और आपको ध्यान हो अध्यक्ष महोदय कि नेटफ्लिक्स पे अभी बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा है जामताड़ा, जो साइबर क्राइम का इस देश का कैपिटल है, वो भी हमारे इलाके में है। और ये सारी घटनाएं बढ़ने के पीछे जो कारण है सर कि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद DGP की जो नियुक्ति है वो UPSC करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
और गृह मंत्रालय और यूपीएससी के बार बार मना करने के बावजूद भी वहां राज्य सरकार एक प्रभारी डीजीपी को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू की हुई सर। यूपीएससी के मना करने के बाद भी वो कहती है कि यूपीएससी का मेरे पोस्टिंग में कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करें, और यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो उस महाराष्ट्रपति शासन लगाएं। जय हिंद, जय भारत। ये थे मॉनसून सत्र के टॉप 5 सुपर एक्टिव सांसद, जिन्होंने खूब बढ़ चढ़कर सदन के चर्चा में हिस्सा लिया और कई बिलों पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।